Day 8 of posting every day for 30 days, and I was just thinking about that how I survived 7 days, and this is my day 8th of posting every day. So I just want to share that with you. Okay, so when I posted my first video, it was something like I was just mopping my floor. I was doing household chores, and then suddenly there was a script in my mind like that. Suddenly I felt the urge of making a video. As I told you that I was thinking about starting a YouTube channel from 2-3 years, but that day, like on my first day of YouTube, I was just cleaning my home, I was cleaning my kitchen, and then suddenly I felt the urge of recording the video. Okay, so what I did, I just put my phone open came I just put my phone with open camera on my refrigerator, and I start speaking. I kept speaking for 10 minutes, and then I saw the video and I was like, okay, this can be the good start of my channel. Like I can post something like this on my YouTube channel. Okay, then I took a bath, I wore new clothes, something like presentable. So I wore new clothes, and then I recorded same video, same with like same things that I said in my that video first day. And it was like, this is my first video on YouTube, and I'm going through this and I'm going through this, and I want to do something in my life and all the stuff. But you know what, when I saw the videos, like the first video that was totally unscripted, that was the urge of recording a video. So I just, okay, so bottle I think, ओके सो बोतल आई थिंक बीच में आ रही है. ओके, तो इसे हम साइड में ऊपर रख देते हैं इधर कहीं. ठीक है. सो दैट फर्स्ट वीडियो दैट आई रिकॉर्डेड इन माई किचन was something else. Okay, and I took a shower and wore like something presentable, wore a nice shirt, and then I recorded the same video with same things. But when I saw those two videos, like they were not same, and there were no honesty in my second video. It felt like fake. It felt fake. I just uploaded my first video like that, and the second video felt so fake. So मैंने सोचा कि नहीं, I'm not going to post that. And trust me guys, you know, these changes that I'm feeling in my life. Okay, let me tell you that I'm the person who does not post her stories, her posts and her pictures on any social media site like on Snap or Instagram without using filter. Okay, I'm very self-conscious. I'm very conscious about my appearance, and I'm very conscious about my appearance. I never put any stories, anything without filter. So I don't know where I got the courage to put that video. Like I was just sweating, I was cleaning my home, and then suddenly I recorded that video. I don't know where I got that strength and where I got that courage to put that video on YouTube. So I put that video. After that, on second day, I was like, भाई अब क्या, like तूने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया, बट व्हाट नाउ? अब कहाँ से तू स्क्रिप्ट लेके आएगी, क्या चीज़ें करेगी? ऐसे चैलेंज ले लिया कि ठीक है 30 डेज के लिए वीडियो बनाने, बट हाउ, क्या करेगी? जैसे तैसे करके कि ठीक है कुछ तो रिकॉर्ड करते हैं. सो डे 1 से लेके डे 5 तक ये सेम स्टोरी. मैं हमेशा ये सोच रही हूँ, सुबह उठते मेरे दिमाग में ये दैट व्हाट विल आई पोस्ट टुडे, आज क्या टॉपिक लेंगे, आज मैं क्या वीडियो बनाऊंगी, एंड ऐसे चैलेंज तो ले लिया. ये थोड़ी चैलेंज पूरा होगा. लाइक अभी आई नो अभी काफ़ी टाइम है, बट यू नो द थिंग्स दैट हैव चेंज्ड इन दीज 7 days आर लाइक आफ्टर 5th day I'm not worried about what I'm going to post, because I know I have faith in me that I'll story कुछ ना कुछ आइडिया मेरे माइंड में आ ही जाएगा, एंड देन I'll post that. एंड सेकेंड इज स्टार्टिंग के 5 days में इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड वीडियो. उठी हूँ, मैंने ज़बरदस्ती फ़ोन रखा है, मैंने कि भाई तुझे बनाना ही बनाना है, तुझे तो कुछ भी कर, तूने चैलेंज लिया तुझे कि भाई तुझे वीडियो बनाना ही बनाना है, तूने चैलेंज लिया और तू उस चैलेंज को पूरा भी कर. डेज में मैं एकदम रोती थी बैठ के कि भाई मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे पोस्ट करूँगी. फिर भी ठीक है, जो भी आई नो कि मेरा कंटेंट क्वालिटी नहीं आई है अभी तक, ना ऑडियो क्लियर है, ना वीडियो क्लियर है, ना कोई बैकग्राउंड अच्छा है, नथिंग. बट स्टिल स्टार्टिंग के 5 days में तो आई वाज लाइक कि अब क्या करना है, अब मैं क्या कर सकती हूँ.
लाइक मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ, लाइक बहुत रेंडम वीडियोस, एकदम बहुत रेंडम बातें मैं अगर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को पोस्ट करना है, तो मैंने वो 5 आफ्टर डे 6 इट्स नॉट लाइक सेम, बट डे 6 से मुझे टेंशन नहीं है दैट व्हाट आई एम गोइंग टू पोस्ट, बिकॉज आई बिलीव इन मी एंड आई नो दैट आई विल फाइंड ए वे। कुछ ना कुछ मैं ढूंढ लूँगी, कुछ ना कुछ कि आई विल फाइंड ए वे, कुछ ना कुछ मैं ढूंढ लूँगी, कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा जिसके बारे में मैं वीडियो में बात कर सकती हूँ। सो दिस इज़ डे 8। तो इस चीज़ से मुझे ये समझ में आया कि भाई हम कितनी बार ज़िंदगी में लूप होल में फंस जाते हैं कि वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं अगेन। लाइक लाइफ में कई बार यू नो दैट फेज ऑफ योर लाइफ व्हेन यू फील स्टक, तब आप कितने भी हाथ पैर मार रहे हो, आप कितना भी सोच रहे हो, आप मेंटली कितने भी आप कितना भी सोच रहे हो, आप यहाँ कितना भी आपके वोट चल रहा हो, कुछ भी आप नहीं अनस्टक हो पाते। आपको नहीं पता कि ये जो लूप होल है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, उस लूप होल से कैसे निकलना है। आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। एंड ट्रस्ट में मुझे भी इसका आइडिया नहीं था। मैं एक लूप होल में फंसी हुई थी पिछले 6-7 महीनों से, एंड आई वॉज सो टेंस्ड, I was so tensed, I had severe anxiety because of that। कि हर सुबह उठ के ये सोचना कि ठीक है आज मुझे ये करना है। एंड कभी मैंने जो सोचा पिछले 5-6 महीनों में, मैंने जो भी चीज़ें सोची कि ठीक है मैं ये कर लूँगी, ये कर लूँगी, मैंने उसमें से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये नहीं मैं करना नहीं चाहती, मेरे अंदर आलस है, बट फिजिकली आई वॉज अनेबल टू डू दैट। मेंटली आई वॉज अनेबल टू ब्रेक दैट लूप होल, फिजिकली आई वॉज अनेबल टू ब्रेक दैट लूप होल। तो वो चीज़ें मेरे से हो ही नहीं रही थी, मैं उस लूप होल से अनस्टक हो ही नहीं रही थी। मैंने इतने वीडियोस देखे, मैंने इतनी चीज़ें करी, मैंने इतने मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, कि मैंने इतने मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिए कि ठीक है कुछ मोटिवेशनल देख के अगर मेरे को थोड़ी देर में मोटिवेशन मिल रहा है, मैं 2 घंटे भी अगर काम कर सकूँ तो करते। लेकिन कुछ असर नहीं हुआ किसी मोटिवेशनल वीडियो का, किसी मोटिवेशनल चीज़ का, किसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट नहीं किया। देन वन फाइन डे मैंने सोचा कि भाई जब तक हम पब्लिकली कमिटमेंट नहीं करते हैं, लाइक आई नो अभी मेरे यूट्यूब पे 0 व्यूज़ हैं, ठीक है, अभी 2-3 वीडियोस लाइक 2-3 व्यूज़ आते हैं, वो भी लाइक मेरी मम्मी और मेरी दी ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा तो उनके फ़ोन से, लाइक मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो देखते हैं। अभी आई नो कि मुझे 1-2 व्यूज़ आते हैं, बट इन फ्यूचर तो व्यूज़ आएंगे ना। इन फ्यूचर जब लोग देखेंगे तो उन्हें मतलब उन्हें ये लगना चाहिए कि भाई क्या बंदी थी क्या, तो इन फ्यूचर तो लोग देखेंगे ना, तो उन्हें ये लगना चाहिए कि भाई क्या बंदी है। लाइक जब कोई नहीं देख रहा था तब भी इसने कमिटमेंट लिया एंड सारी चीज़ें करी। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर दैट फ्रॉम पीपल। ओके, वन डे कोई नहीं देख रहा था, जब कोई देखने वाला नहीं था ना, फिर भी इस बंदी ने अपनी कंसिस्टेंसी रखी। तो वही चीज़ है, लाइक अगर किसी जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम मी कि अगर आपको भी लग रहा है दैट यू आर स्टक और एक बहुत गंदे वाले लूप होल में आप फंस गए हो, नहीं निकल पा रहे हो, पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दो। लाइक पब्लिकली वैसे आपको अनाउंसमेंट अगर आप नहीं भी कर सकते, आप एक बहुत नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, आपको अगर नहीं करना, आपको किसी चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए, आपको सच में यूट्यूबर बनना भी नहीं है, आपको ऐसी चीज़ों में जाना भी नहीं है, स्टिल आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो एंड उठाओ और यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लो। एंड देन ऐसे बिहेव करो वहाँ पे कि आपकी लाखों की ऑडियंस है जो आपको देख रही है, और अगर आप कोई कमिटमेंट कर रहे हो तो वो उन लाखों की ऑडियंस के सामने है। एंड नाउ यू हैव टू टेक द स्टेप्स, नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर चैलेंज। तो वैसे आपको प्रिटेंड करना है कि लाखों की ऑडियंस है, उसके सामने आपने चैलेंज लिया है कि 30 डेज के लिए, लाइक कितने भी दिन का चैलेंज हो सकता है, आपको 15 डेज के लिए रखना, आपको 30 डेज के लिए रखना, आपको 40 डेज के लिए रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड आपको जस्ट एक बार अपनी लाइफ को अनस्टक करना है। लाइक मुझे मेरी लाइफ में मेरे को दिखा है, इवन 8 डेज में मेरे को फ़र्क दिख रहा है। मुझे पता है कि थोड़ी सी चीज़ें सही हुई हैं, थोड़ी सी टच वुड, मैं नहीं चाहती कि नज़र लगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें सही हुई हैं। तो आपको बस एक यूट्यूब चैनल आपको क्रिएट करना है, ऐसे प्रिटेंड करना कि हाँ भाई लाखों की ऑडियंस है, लाखों की ऑडियंस देख रही है। अब आपने कोई भी कमिटमेंट करा है तो वो कमिटमेंट आपने लाखों लोगों के सामने लिया है, उसको आपको पूरा करना ही करना है। तो आपको ये है कि भाई मेरे को जिम जाना है, मेरे को पढ़ना है, तो आप जस्ट रेंडम वीडियो, आपको ज़्यादा बड़ी नहीं तो 2 मिनट की वीडियो बनाओ। आप 2 मिनट की वीडियो बना के कि हाँ भाई ठीक है, तो अभी मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ, 30 डेज में मेरे को इतना वेट गेन करना है या इतना वेट लूज़ करना है, या मेरे को 30 डेज में पढ़ने की हैबिट डालनी है, मैं 6 आवर डे
रखने की कोशिश करूँगा, 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करूँ, ये सारी चैलेंज जस्ट आप नॉर्मली 2 मिनट का बनाओ डाल दो, 2 मिनट का बनाओ डाल दो, नॉर्मली कुछ नहीं करना आपको। और आपके माइंड में फिर ये होगा कि भाई चैलेंज तो लिया, चलो चैलेंज को पूरा करना, तो उसके लिए में भी आप उस चीज़ के लिए, बिकॉज मुझे पता है ना, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग टू गेट अनस्टक इन माई लाइफ, बट कौन सी चीज़ मुझे हेल्प कर रहा है, लेकिन कौन सी चीज़ मुझे हेल्प कर पा रही है, यूट्यूब चैनल। मैं अब पिछले 7 दिनों से मैं थोड़ी सी लाइफ में अनस्टक फील कर रही हूँ। अब उतना गिल्ट मेरे को नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कुछ मैंने स्टार्ट करा है एंड ग्रेजुअली चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं वीडियोस कंटिन्यू बना रही हूँ एंड आई नो दिस इज द स्टोरी ऑफ 7 डेज। तो द थिंग इज कि एक ही रास्ता है सारी चीज़ों से बचने का, सारी चीज़ों को ओवर करने का, एक ही रास्ता है सारी चीज़ों से बचने का, सारी चीज़ों को ओवरकम करने का। दैट इज आपको खुद उठ के स्टेप लेना पड़ेगा खुद के लिए, आपको खुद अपनी लाइफ सही करनी पड़ेगी। देर इज नो वन दैट कैन डू दैट फॉर यू, नॉट इवन देर इज नो वन हु कैन डू दैट फॉर यू, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, कोई नहीं कर सकता। आप अगर किसी चीज़ में फंसे हो, आपको कोई भी परेशानी है, आप मेंटली फिजिकली जो भी, आपको पहले खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा, आपको खुद उस चीज़ों से निकलना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी दैट आई वांट टू चेंज दिस शिट अबाउट माई लाइफ। तभी चीज़ें चेंज होनी है, बाकी कोई दूसरा इंसान आके कुछ नहीं बदल सकता। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, दैट हाउ यू आर गोना लिव योर लाइफ। तो अभी भी मैं नहीं जानती मेरा ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचने वाला है, लेकिन जितने भी लोगों तक पहुंचे, कभी कभी बहुत रैंडम दिखने वाले लोग जिनके पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी वीडियोस अच्छी नहीं है, उनकी बातें कई बार अच्छी हो सकती है बिकॉज ये चीज़ें मैंने कहीं से पढ़ के नहीं भूली है, ये चीज़ें मैंने कहीं से पढ़ के नहीं भूली है, ये चीज़ें मैंने किसी से कॉपी करके नहीं भूली है, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि एक लूप में फंसना कैसे होता है, लाइफ में स्टक फील करना कैसे होता है, और आप जब हर तरफ हाथ पैर मारे हो, कुछ भी आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो एक छोटी सी चीज़ आपको मिल जाए, आप एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उस चीज़ का मिल जाए, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन जितने भी लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंचे, आई होप वो अपनी लाइफ में अनस्टक हो सके। बस करना ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से कैसे भी रोक के, लड़के, कुछ भी करके निकलना है। आपको उस लूप से, आपको स्टार्टिंग के कुछ दिन, स्टार्टिंग के 5 दिन, स्टार्टिंग के 7 दिन आपको लड़के रोके उठना है। ठीक है, आपको उठना है। आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप जस्ट बुक्स लेके बैठो, बुक्स लेके बैठ रहे हो आप, बस कि मैं 2 घंटे बुक्स लेके बैठा हूँ, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, दूसरे दिन वापस उठो, बुक्स लेके बैठो। आज तुम ज़्यादा भी नहीं तो 1 पैरा एटलीस्ट पढ़ पाओगे। तीसरे दिन उठो, बुक्स लेके बैठो, एंड आज में भी तुम 2 घंटे बैठे हो, उसमें से आधा घंटा तुम्हारा प्रोडक्टिव रहा हो, आधे घंटे तुमने पढ़ा है, और जो चीज़ तुम करने की सोचो वो करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम 2 घंटे बैठ के तुम 2 घंटे प्रोडक्टिव रहे हो। तुम 2 घंटे बैठ के तुमने 10 मिनट प्रोडक्टिव निकाली है, दैट्स इनफ। क्योंकि बहुत एक साथ सारी चीज़ें नहीं सही होती, एकदम थोड़ी थोड़ी एक स्टेप लेके चीज़ें सही करी जाती है, तो ठीक है, दैट्स टोटली ओके। हमें खुद का, अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। हम हर चीज़ का सॉल्यूशन बाहर से नहीं मिल सकता, कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे अंदर है। तो सेम चीज़ अभी पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए अगर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, मेट लगाओ अपनी योगा मेट, अपनी वर्कआउट मेट लगाओ, एंड आप जस्ट वार्म अप कर रहे हो 5 मिनट, दैट्स टोटली ओके। वार्म अप करो, रख दो। सेकंड डे आओ, वार्म अप करो, रख दो। थर्ड डे आओ, वार्म अप करो, रख दो। फोर्थ डे वार्म अप के अलावा आप 10 मिनट निकाल सकते हो। आपको लगेगा कि हाँ भाई वार्म अप अब थोड़ा सा और कर लूँ, तो ये चीज़ है। आपको जैसे तैसे करके, आपको रोना है, आपको कुछ करना है, रो, लड़ो, कुछ करो, आपको काम करना है, दैट्स इट। यही है एक लाइफ की सच्चाई। बाकी कोई मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स और कोई चीज़ वर्क नहीं करने वाली है। आपको जलना पड़ेगा उस चीज़ में, आपको खुद को निकलना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना। सो इफ़ यू फील स्टक इन योर लाइफ, ये बहुत प्रैक्टिकल मैं खुद करके देख रही हूँ, मुझे पता है, मेरे को थोड़ा अनस्टक फील करने लगी हूँ मैं अपनी लाइफ में। अब लग रहा है कि वो लूप होल है, उस लूप होल से निकलने की मैंने कुछ तो तरकीब निकाल ली है, मैं धीरे धीरे करके एकदम पूरी तरीके से उस चीज़ से निकल पाऊंगी। तो दैट्स इट, अभी इस वीडियो में इतना ही।